Talking about sexual health, both for men and women. Obviously, women have indicators, something like a perimenopausal, Yes, true, menopausal, true. depression, all of True. that. Is it actually natural to lose that drive after your 40s? Is that even true, firstly? No, it's false. It's completely false. There is no way out that you lose that drive. You only lose it because, you're not taking care of yourself. Being obese, being not fit, not eating well, Ah. not on, best supplements and everything. The hormones are not doing great. Lot of stress. Here we are, new season, but many other reasons as well. A very, very eclectic guest. My guest today, Dr. Tanu Gupta. मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. अभी recently मैं उनसे मिली और we kind of hit like a house on fire. Welcome to. We did. And recently found out we have a same sun sign. Oh wow, that makes for so many girly conversation. But here we are with the physician, the diabetologist, Thank you. the girl who wears many hats and inspires people by just being who she is. Dr. Tanu Gupta, welcome to Unbound. Thank you, Mamta, for such a warm welcome, for such a nice introduction. I'm so happy to be here Yeah, we are very, very glad and ready to be unbound. Unbound, totally. And such a authentic, such a unfiltered person that you are. पहले तो मुझे बताओ कि आपकी ये डॉक्टर बनने की शुरुआत कैसे हुई? You look like, I don't know if I can say, like not a doctor at all. Yeah, we don't have to look like doctor, we have to behave like one. Wow. I was very like scholar in my school days, and I used to go to a clinic with my father for Okay. his medicinal needs, Okay. and used to meet a doctor there. He was like an aura, a very pretty, beautiful doctor, and very nice aura, and the way he used to treat patients and the smile he had. I knew it that I want to be that healer. I want to be in that profession where you feel that fire of treating someone, giving them gift of life. So from there I started my journey. I started studying so hard. I got into a medical school. Then I studied well, and then went to US to, and then came back, and then went to Mumbai for my higher studies. And that the journey continued. Learned so much, traveled so much, seen so much, and still continuing to learn. Wow. And I want to travel a lot with this medicine journey of mine. Excellent. And from understanding others' pain to really just not facilitating, but also now providing, manufacturing, producing your own line of nutrients and health supplements. Yes. From being a doctor to now entrepreneur, how is this shift happening for you? Oh, this is a very amazing adrenaline rush transition happening. I am starting to realize what is the power of nutraceuticals and what is nutritionally so important. With this, new journey, I'm realizing lifestyle is so important. Yeah. To work on yourself is so important. I've been this curative doctor all my life, and I really want to be now entering into, preventive medicine doctor, wherein I want to tell a lifestyle to people. Yeah. Encourage more of a better mental health, nutritional supplements which can help you have a nice longevity. Yeah. जिंदगी लंबी हो, okay, पर जिंदगी अच्छी हो, वो भी बहुत ज़रूरी okay. है. So that's something that I really want to promote. Yeah. So ये journey बहुत inspiring हो रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है in this path. I'm learning new things about the lifestyle changes, the nutrition, the diet, and the fitness, which is so important for Yeah. our life. And you're like a living example. I'm doing Right? You're just not professing it and just not going on talking about it, but you're living it. So tell us a day in Dr. Tanu's life, like. A day in my life. So yeah, I'm a morning person, Yeah. a complete morning person. So I get up every day, go for my running, 1 hour of running, just me time, listening to music, coming back, getting ready my son for the school. I have a son, a 6-year-old son who goes to school. Yeah. So yeah, a lot of good conversation with him, and then I get ready for my work, for my meetings. So basically, I'm someone who wants to plan a day. I am not someone who just starts a day. I really want to get up early and start my day planning things, what all I want to do. कितने लोगों से मुझे मिलना है, क्या क्या डिस्कशंस करने हैं,
प्रोडक्ट्स के लिए क्या करना है ना, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन अ प्लान्ड वे. आई एम लाइक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. आई डू नॉट लाइक लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस तरह का काम in my life. I really like to organize my day and then whether as eating high protein breakfast. I believe आपको अपने खाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि गट हेल्थ सब कुछ है. अगर आपका गट अच्छा है, मेंटली आप स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो, you're not feeling well, you're not feeling yourself, तो आप किधर भी जाओ मीटिंग के लिए, यू विल नॉट फील गुड. Oh my कोई भी God. प्रेजेंटेशन. Wow, what an Nothing. insight. Yeah. What an insight. So if you are constipated and you are chichira through the day, don't be surprised. Don't be surprised. Go to Dr. Tanu and figure out what needs to be done next. So I always So say gut health, is it actually a recent conversation, और जैसे हमारा आयुर्वेदा और हमारे वेदास हैव टॉट अस कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए. आपने बोला कि वो शुरू के 1-2 घंटे अपने लिए निकालना, वो मी टाइम, अब चाहे वो मेडिटेशन से करो, एक्सरसाइज से करो, fitness योगा से करो, योगा हाँ, से करो. anything. बट ये सब कुछ आजकल गट पे कैसे क्यों वापस आ रही है ये एक्चुअली conversation? क्या हुआ है ना कि कोविड के बाद आई थिंक पीपल हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी. कि हमारी इम्यूनिटी कहाँ है? इम्यूनिटी सारी पेट में है. ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं पेट में जो हमें गॉड गिफ्ट मिले थे, बहुत अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी पूरी पेट की न्यूट्रिशन, हम जो खाते हैं उसको अब्जॉर्ब करते थे, एनहांस करते थे और हमें अंदर से एकदम इम्यून स्ट्रॉन्ग. सो बेसिकली क्या हुआ कि इतने सालों में न्यूट्रिशन चेंज हो गया. लोगों ने वेस्टर्न वर्ल्ड में जो दिखता था पिज्ज़ा, पास्ता, मैदा, चाइनीज़, ये सब खाना शुरू कर दिया. एंड वो सारे अच्छे बैक्टीरिया जो थे वो सब मरने लग गए. गंदे बैक्टीरिया चलने लग गए. सो इतना ज़्यादा टाइफाइड, इतना ज़्यादा पेट के इन्फेक्शंस, इतना ज़्यादा जो हम लोग डेली देखते ना, पेट की आंत फट गई, ये सब शुरू हो गया. सो बेसिकली इसकी स्टार्ट हमारे गट से हुई. फिर मैं आती हूँ डायबिटीज़ पे. डायबिटीज़ भी वहीं से शुरू हुआ. हमने ऐसी ऐसी चीज़ें खानी शुरू की, इतनी शुगरी, इतना सारा शुगर बेकरी में डाल के कि पेट बेचारा क्या करे, वो अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है. हमारा जो पैंक्रियाज है, जो जूसेस निकाल रहे हैं, वो कितना निकालेगा, कितना है ऑप्शन उसके पास. तो वहीं से डायबिटीज़ शुरू हो गई. पहले के लोग बहुत वॉक करते थे, दूर दूर जाना पड़ता था और वो लोग घी खाते थे, न्यूट्रिशनली चीज़ें खाते थे, गुड़ खाते थे. हमने क्या कर दिया कि हम बैठे रहते हैं, हम तो उठते भी नहीं हैं, हम तो गाड़ियों में चलते हैं और वॉकिंग का तो कोई मतलब ज़माना ही नहीं रहा, फिटनेस का कोई मतलब ही नहीं रहा. तो इसी वजह से ना वो सारा पेट की परेशानी जो है ना, वो अब सामने आ रही है. और गट हेल्थ ऑब्वियसली इट्स अ न्यू सेंचुरी, तो नाम तो आएंगे ही बहुत सारे, बट द गट हेल्थ बेसिकली पेट से ही सब कुछ है. पेट से शुगर है. जितने भी आप बॉडी पे रैशेस देखते हो, जितने भी आप इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखते हो, आर्थराइटिस, थायराइड, सब पेट से आ रहा है. सिर्फ खाने के टेस्ट को अगर हम थोड़ा सा ऑल्टर कर लें और अच्छी चीज़ें, मतलब दाल चावल जैसी चीज़ें, घी, ये सब खाना शुरू कर दो, तो आई थिंक बहुत चेंज आ सकता है. इंडिया की पॉपुलेशन में मैं देख रही हूँ आजकल की 35 to 40 में बहुत सारे डायबिटिक्स आ रहे हैं. एमर्जिंग अलार्म है ये. अगर एक्चुअली में इस पर काम नहीं किया गया तो हमारी पॉपुलेशन जो डायबिटीज़ में पहले 50s में आती थी या 45 में आती थी, इट स्टार्ट्स कमिंग एट बिफोर 40. Oh my God. Which is bad. Pre-diabetics. बट डायबिटीज़ या कोई भी ऐसा लाइफस्टाइल ड्रिवन एपिडेमिक जो आज हम फेस कर रहे हैं, इट कैन बी रिवर्स्ड. इट कैन बी. वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि जो आप 20 में थे और जिस तरह से आप लाइफ जीते थे या वर्कआउट करते थे या जो खाते थे, वो आप 30 में नहीं कर सकते. अब चीज़ें बदल रही हैं. अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पास एक बच्चा है, आपके पास जॉब है, आपके पास बहुत सारा काम भी है. अब आपको सोचना पड़ेगा कि हमें खाना क्या खाना चाहिए. 20 में जब कॉलेज में थे वो तो नहीं खा सकते ना. तो बेसिकली प्रॉब्लम यही आ रही है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, टेस्ट चेंज नहीं हुआ है, क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है कि कमाना है, सेटल होना है, लेकिन हम खा वही रहे हैं. तो इसीलिए डायबिटिक्स, बहुत ज़्यादा प्री डायबिटीज़ हमें दिखते हैं. अगर आप लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, समझ लें कि दिस इज़ हाउ वी हैव टू लिव, ऐसे ही जीना चाहिए कि सुबह आपके पास अपने लिए इतना टाइम हो. देखो मैं बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ.
अगर आपके बच्चों को समझ आ रहा है कि आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, जिम जा रहे हो या Yeah. स्पोर्ट्स कर रहे हो, Yeah. वो भी ऐसे ही करेंगे. वो भी रिस्पॉन्सिबल बनेंगे. आई नो, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी हाउस. आपकी हेल्दी हैबिट्स खाने पीने की उन बच्चों में जा रही हैं. Absolutely. जितना ज़्यादा आप घर पे जोमेटो से पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हो, उतना वो बच्चे भी खा रहे हैं. और जितना ज़्यादा आप घर पे एक कल्चर क्रिएट कर रहे हो कि नहीं देखो घर पे ऐसे खाना है, वी हैव वीकेंड्स मे बी टू एंजॉय, Yeah. वी आर गोइंग आउट, तो आई थिंक इट विल क्रिएट सम डिफरेंस. बट आई थिंक एक जो बहुत ही पॉपुलर कॉन्वर्सेशन है ना, स्पेशली वेजिटेरियंस को लेके, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन बाय चॉइस, कि उनकी डाइट में प्रोटीन कैसे लाएं, उनकी डाइट में बहुत प्रोटीन आ सकता है. मतलब हम सोयाबीन, स्प्राउट्स, दाल के पराठे, दाल की रोटी, ये सब भूल ही गए हैं. मतलब चीले, दाल की चीले, बेसन इज अ बिग प्रोटीन. मतलब बेसन के चीले ले सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं. मतलब यूट्यूब भरा हुआ है. हम लोगों को बस एक्चुअली में समझना है कि हमें मतलब वेजिटेरियन होके प्रोटीन कैसे बच्चों को थोड़ी रीओरिएंटेशन चाहिए चाहिए. एंड प्लांट प्रोटीन भी अवेलेबल है. Yeah, मार्केट में इतने अच्छे प्लांट प्रोटीन है एंड दे आर गुड इनफ. 25 ग्राम एक स्कूप में मिल रहा है, और क्या चाहिए. अगर आपको लगता है आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पास आप सच में टाइम नहीं है, यू हैव लाइक बिजी लॉन्ग आवर्स, सो एटलीस्ट यू कैन टेक हेल्प ऑफ दीज थिंग्स. इट्स नॉट अ बैड आइडिया, राइट. coming to the discussion of women, food, lifestyle, beauty, women, where does this whole thing go now? So much a woman is wanting to preserve in terms of her longevity, in terms of her looking good, and yet the age, which is of course a number, but it gets by, you know, and that leads to a lot of mental stress, hormonal imbalance, Of course. and they don't know how to deal with it, especially the ones who are either hitting their Perimenopause, yeah. or already there with menopause. How would you really decode it for us? नहीं, for the women I would tell, we all know menopause will hit you after like 45 and like, you know, that age. So I would recommend that, you know, when you turn 35, you know the age is clicking. Start taking good supplements for your longevity first. Second is lifestyle. Completely देखो, फैमिली को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपकी अगर आप अच्छे नहीं लग रहे हो ना, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है. ऐसा नहीं कि फैमिली की वजह से चलते चले जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाओ ऑन योर डाइट, ऑन योर लाइफस्टाइल, ऑन योर फिटनेस. अपने लिए टाइम निकालो. अगर आप उस एज पे फिटनेस में आ जाते हो, यू नो, यू स्टार्ट रनिंग, यू डूइंग सम स्पोर्ट्स एंड यूर, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल एंड, यू नो, डाइट, सो द पेरीमेनोपॉजल स्टेज जो है ना, वो बहुत ही आराम से निकलेगा. पेरीमेनोपॉज के लिए ना प्रिपरेशन जो है ना, वो आपके 30s में शुरू हो जानी चाहिए. जैसे हम लोग प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि प्री कंसेप्शन अपने मल्टीविटामिन्स, अपने वेट, अपने लाइफस्टाइल को पहले ही ठीक कर लो इफ यू रियली वांट टू कंसीव. सो पेरीमेनोपॉज के लिए भी यही एडवाइस आती है कि पहले तो 30s में अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करो. पर ये कॉन्वर्सेशन ही कोई करना नहीं चाहता है. कहाँ जाएं, किससे बोले, कहाँ पता करें, कैसे शुरुआत करें इसकी यार? मतलब शुड वी अगेन गो टू यूट्यूब अकेडमी? नहीं, for this you'll be very excited that we're bringing up a brand called as Peach X. Peach X is about people. It's a Wow. people's brand. They share journeys with us. So we will be having doctors on board, a nutritionist and counselors. You will get all the help you need. You will get the supplements also, especially for that. Because menopause के लिए ना, पेरीमेनोपॉज से मेनोपॉज तक के लिए कुछ सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वेजाइनल क्रीम्स की रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली आपको सिम्टम से निकलना है. देखो, रूट कॉज को तो ट्रीट नहीं कर सकते, ये तो एज है. यू विल बी देयर, यू विल बी हैविंग मेनोपॉज, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, है ना. इट्स बायोलॉजिकल, राइट. जैसे मिनार्की हुआ था वैसे मेनोपॉज ही होगा. पर उसके लिए और क्या कर सकते हो? सप्लीमेंट अच्छे ले सकते हो जो आपके सिम्टम्स को रिलीव करें. तो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो टोटली. आई थिंक इम्पोर्टेंट है अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट करना. वो लोग जो इसमें साथ साथ चल रहे हैं, उनके साथ आप जो फिटनेस के लिए में है, बिल्कुल आई थिंक उनके साथ आप क्लब करो, उनके साथ आप बाहर घूमने जाओ, फिटनेस के लिए जाओ, बैडमिंटन से लेके सब कुछ. अगर आप घर पे बैठोगे ना और पूरे टाइम मेनोपॉज सोचते रहोगे तो पागल हो जाओगे.
The only way out is you need to speak about it, you need to consult your gynecologist, you need to sit with them. Because अगर आपको मतलब रिप्लेसमेंट थेरेपी भी चाहिए तो उसके लिए भी गाइडलाइंस होती हैं. आपको गायनेक से मिलना ही पड़ेगा. अगर आप सिवियरली इनटू मेनोपॉज हो एंड यू आर नॉट एबल टू कोप अप, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो हम दवाइयाँ देते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं, उससे भी नहीं आराम मिल रहा है, then you'll have to go for a replacement therapy. What does replacement So mean? you know your hormones are depleting, obviously. Yeah. The uterus is no longer supporting you. Yeah. So replacement therapy में estrogen, progesterone, ये सब replacement therapy में आता है. Okay. We are giving hormones from the outside. Okay. और पेरीमेनोपॉज टू मेनोपॉज ना बहुत ज़रूरी है. आप यू शुड चेक योर hormonal levels as well. FSH आपको चेक करना पड़ेगा. Okay. You need to see where you're standing even in menopause, how much depletion has happened. There is a standard checks to that also. Yes, that's what I'm saying. Okay. You need to visit the website, you need to see the gynecologist, you need to talk to them. They will guide you. Smoothly they will take you out from this. You will have an immense journey to it. But in India, I mean, because again, you know, सब कुछ है. We know we are an overpopulated country. There is enough and more of people's drive to have sex. There is enough and more curiosity. There is enough and more need. But nobody still wants to be out there. Like, मुझे नहीं पता कि मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे सिट डाउन करके या बोला हो कि ममता अब तुम इस स्टेज में पहुंचने वाली हो, कम फॉर अ सेशन. हाउ डू वी लीड टू फ्रॉम अ रिएक्टिव टू अ प्रोएक्टिव अप्रोच? हाउ डू वी मेक दैट शिफ्ट? I think that's about asking for help. आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब नेक्स्ट टाइम जाते हो ना, उनसे यू हैव टू आस्क, यू नो, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी एंड आई वांट टू ओपन अप. देखो, डॉक्टर्स आपकी हमेशा हेल्प करेंगे. ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू बी अनबाउंड. यू नीड टू रियली टॉक टू देम. यू नो, हमारे देश में ना लोग इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते. चाहे मैं 25 साल की एक लड़की की बात करूं जो एक PCOS से गुजर रही है, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस है, शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो सेक्सुअली क्यों नहीं उसको अच्छा मतलब ऐसे फील हो रहा है, या वो सेक्सुअली ड्राइव क्यों नहीं है. या 45 साल की वो औरत है जो ये कह रही है अब तो 45 साल की हो गई हूँ, अब क्या ज़रूरत है सेक्स की मुझे, है ना, या वो आदमी है. आई थिंक प्रॉब्लम सारी लाई करती है हमारी सोच में. ना हम बात करना चाहते हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया हम कैसे दिख रहे हैं, हम मोटे हैं, हम ऐसे हैं. ओबेसिटी इतना बड़ा डिसऑर्डर है, बट स्टिल नो डिस्कशन अराउंड. या इट्स लाइक कि हाँ 40 के बाद तो पेट निकलेगा ही, अब 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ तो ऐसी ही दिखूंगी, अब इससे बेटर क्या हो सकता है. बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू द टेबल इज दैट उस सोच को भी कैसे शिफ्ट वो सोच बदलेगी. आई थिंक जो मैं और आप आज कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इतने लोग सुनेंगे उसको, तो द सोच विल गेट बेटर डे बाय डे. बिकॉज आपके जैसे मेरे जैसे लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों को. मतलब अब इंडिया में मैं देख रही हूँ देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस हैपनिंग अराउंड दीज थिंग्स. गाइडलाइंस बदल गए हैं. ओबेसिटी का गाइडलाइन बदल गया, अभी नया गाइडलाइन आया. आई वाज ऑन अ मिरर इंडिया इंटरव्यू, आई वाज अ पैनलिस्ट देयर, सो वी डिस्कस्ड इट कि अब्डोमिनल गर्थ इंपॉर्टेंट है. पेट निकला हुआ है ना, वो ओबेसिटी है. उसी से डायबिटीज, थायराइड हो रहा है. मतलब और सेक्सुअल वेलनेस की बात करूँ ना, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इतनी अच्छी हेल्प अवेलेबल है, काउंसलिंग अवेलेबल है. आपको बस हेल्प लेनी है. आप हमें पीचेक्स के बारे में बता रहे थे, आपकी ब्रांड लॉन्च होने वाली है और हम और जानना चाहेंगे, क्यूरियोसिटी बहुत है कि क्या किस किस तरीके की हेल्प, किस किस तरीके के सप्लीमेंट्स, और starting from what age, and is this gender neutral or are you only looking at women health? Just tell us everything. So many questions. Okay. So as I said, PeachX का मतलब है people and their shared journey with us. P is like people and each one of them with us. Oh wow. So you know the brand itself says कि हम सबके लिए हैं. हम छोटे से उस बच्चे के लिए भी है जो अभी पैदा हुआ है. Okay. हम उस बूढ़े बाबा जी के लिए भी है जो 65 साल के हैं, उन्हें हेल्प चाहिए, उनको सप्लीमेंट चाहिए, उनको लीगल प्रॉब्लम्स हैं. हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी कम्युनिटी है. हमारे पास पीडियाट्रिशियन है, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक हैं, मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर्स हैं. अगर आप बहुत परेशान हो अपने जॉब में तो हमारे पास लाइफ कोच हैं. हमारे पास बहुत ही ब्रिलियंट न्यूट्रिशनिस्ट है. बहुत ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है. हमने कोशिश करी है कि हम पीचेक्स के थ्रू लोगों को एक लाइफस्टाइल दे सके. सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, उनका आंसर है पीचेक्स. कि यू नो उनको मेनोपॉज में प्रॉब्लम है, वील हेल्प देम आउट. उनको एक बच्चा छोटा सा पैदा हुआ है, माँ को बहुत प्रॉब्लम हो रही है,
वी कैन हेल्प देम बट इसका आइडिया कहाँ से आया है? इतना लंबा मिशन, इतना बड़ा मिशन बनाने का आइडिया कहाँ से आया है? सो आई थिंक इतने साल के करियर में इतनी सारी चीज़ें जो मैं देख रही थी, समझ रही थी, लोगों से मिल रही थी, आई थिंक लोगों से मिल के आती है आपको आइडियाज़. मैं हमेशा बोलती हूँ, बी अ पीपल पर्सन, मीट पीपल. ऐसा मत सोचो, किसी को जज मत करो, कहीं मिलने से पहले, मीटिंग से पहले ओवर थिंक मत करो, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा होगा. आई थिंक लोगों से मिलो, इंजॉय पीपल, टेक फ्रॉम पीपल, अब्जॉर्ब. मैंने हमेशा अब्जॉर्ब किया है. अब मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, पर मैंने बहुत अब्जॉर्ब किया है. मैंने देखा है कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसे अच्छा होगा. और ऑब्वियसली आप जब एक मिशन पे निकल जाते हो ना, तो वो मिशन कंप्लीट होना चाहिए, है ना. ऐसा नहीं कि आपने एक ब्रांड बनाया, सिर्फ प्रोडक्ट्स को बेच दिया, ये गलत है. आप एक्चुअली एक लाइफस्टाइल क्रिएट करो लोगों के लिए ना. उनकी बहुत क्वेरीज हैं. उनकी सोच बदलो, उनकी हैबिट्स बदलो, उनका कंजम्पशन हो वो तो बदल ही जाएगा. बिल्कुल That is a बदल byproduct जाएगा. of all मैं of लिटरली कह रही हूँ, मैं आज मार्केट में देख रही हूँ, जवार का आटा रेडीली अवेलेबल है, रागी रेडीली अवेलेबल है, आपके रागी के डोसे बन रहे हैं, है ना. आपके पास खाने पीने में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, पर हम ही एक्चुअली अटके हुए हैं. आज भी बहुत सारा मीठा खा रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो लाला हैं, पेट निकल गया तो क्या हो गया. एक्चुअली आप जिस बीमारी से फिर मतलब आपको डायबिटीज हो जाए या थायराइड हो जाए या आर्थराइटिस हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर तो दवाई खानी पड़ेगी ना इतनी सारी. आपकी अपनी भी जर्नी है ना, आपने भी थायराइड को काउंटर किया है और अपने ऊपर काम करके, तो उसके बारे में बताइए. So literally, I was very shocked. 2 years back, I got diagnosed with thyroid. I was like, I was this fit person. How did it happen? I looked upon myself. मैं actually में खुद भी बहुत मैदा कंज्यूम कर रही थी, बहुत मीठा खा रही थी, पार्टीज में जाना, बस कुछ भी खाते रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रही थी. एंड आई हैड आई ओपनर टू माई सेल्फ लास्ट ईयर कि नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मुझे और बीमारियाँ हो जाएंगी. मतलब डायबिटीज़ तो वैसे भी मतलब पूरी फैमिली में रन करती है, सबको ही हो जाएगी. देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. आई एक्चुअली लेफ्ट वीट, क्योंकि वीट हमारे लिए नहीं बना है, पचाना भी मुश्किल है और उसको हम बहुत खाते हैं. तो मैंने वीट छोड़ा. आई थिंक ज़्यादा खाते हैं, हमारी डाइट बहुत ज़्यादा में वीट खाते का हैं. इंटेक ज़्यादा है. फ्रॉम मॉर्निंग पराठास टू evening Literally. chapatis. Literally. I think we pretty much go breaklessly ऑन इट, है ना. that, yeah. मतलब पता है, मक्खन और घी से उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी वीट से प्रॉब्लम है. ग्लूटेन, हम लोग ना, बहुत लोग ग्लूटेन एक्चुअली हम बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं. एक तो time ये के बाद. कहना सही रहेगा कि खाइए, सब कुछ खाइए, जैसे आपने उस दिन थोड़ी देर पहले भी बोला कि मॉडरेशन, बैलेंस. मॉडरेशन इज की टू लाइफ. Key to life. मैं देखती हूँ आजकल लोग बहुत सारे क्रैश डाइट कर रहे हैं. अभी एक इंसिडेंट हुआ है एम्स में, एक पेशेंट गया है विद द स्लिमर पैरालिसिस. ओह, उस बंदे ने 15 दिन में वेट लूज किया, बहुत सारा, विच इज़ रॉन्ग. आई वुड नॉट रिकमेंड दैट टू एनीवन. मतलब वेट को धीरे धीरे कम करो अगर बहुत ज़्यादा है. आई मीन मॉडरेशन इज अ की टू लिव लाइफ. मॉडरेशन मैं कह रही हूँ सब में. और वो एक सस्टेनेबल हैबिट बनाओ ना उसको. दैट्स द होल आइडिया कि अगर आप ही इज गॉन इनटू अ पैरालिसिस. अभी उनको न्यूट्रिशनली दवाइयाँ दी जा रही हैं, ठीक किया जा रहा है वहाँ पर. सो मतलब ऐसे चीज़ों पे मत आओ कि बिल्कुल ही क्रैश डाइट्स पे जा रहे हो. एक तो लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, मैं बताना चाहती हूँ ऑन दिस टेलीविजन. फ्रूट्स को नहीं खाना है आपने खाली पेट, प्लीज़. इट्स अ अर्ज. Okay. हमारा लिवर नहीं डाइजेस्ट कर सकता है फ्रूट्स को. फ्रक्टोज होती है उनमें और हमारे लिवर में वो कैपेसिटी नहीं है. ये जो लाइफस्टाइल है ना कि हम फ्रूट्स पे ओडी रहेंगे, कम ऑन प्लीज डोंट डू दैट टू योरसेल्फ. अगेन मॉडरेशन कम्स इन. दाल चावल बहुत अच्छी चीज़ है. अगर आप अंडे खा सकते हो तो सुबह अंडे खा लो. मतलब मुझे लगता है कि ऐसे फ्रूट्स को मत खाओ, इन बिटवीन खा लो. in between meals have राइट. them. उसके लिए डाइजेस्ट करने के लिए ना एनर्जी, केटीपीज एंड एटीपीज पहले भी चाहिए, बाद में भी चाहिए. राइट. ऐसे नहीं कि खाली पेट आपने खा लिए फ्रूट्स. बहुत लोग व्रत रखते हैं तो उसमें भी वो यही सब करते हैं. फिर हमारे पास आते हैं एसिडिटी लेके. नहीं, हमारे पास आ जाओ, मना नहीं है आने के लिए. हेल्प चाहिए तो आओगे ही. बट आई थिंक थोड़ा सा सोच का फर्क है. Yeah. But with the current trends and a lot of capacity to earn and burn. Earn and burn. I so agree to you. What would you say? Where should people be really putting their money? अगर Zomato नहीं करना, अगर Swiggy नहीं करना, अगर बाहर जाके नहीं खाना, तो कैसे अपने आप को बेहतरीन भी बनाएं, अच्छा खाएं भी, इंजॉय भी करें उस फूड को,
और इस तरीके से कंज्यूम करें कि अच्छे भी दिखें और अच्छे भी अच्छा, रहें। मैंने ना रिसेंटली बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा, अगर आप डाइट 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 करके फूड को देखोगे ना, Yeah. तो कभी भी आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज ही नहीं होगा और आप कभी पतले नहीं हो क्या पाओगे। होता है ये सेरोटोनिन? बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है। सेरोटोनिन इज एक्चुअली वेरी गुड हार्मोन दैट टेल्स यू दैट यू आर हैप्पी। Okay. यू नो, आपकी सैटिस्फाइटी आ रही है, आप खुश हो। Yeah. तो खाने को जब आप सैलेड भी बनाओ ना, बड़े जोश से बनाओ, अरे वाह यार, इसमें तो हम बहुत सारी ये चीज़ें डाल रहे हैं, प्रोटीन, एवोकाडो डाल रहे हैं, है ना, अंडा बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से अंडा बना रहे हैं। मतलब अपनी ना Full जोश से लाइफस्टाइल को एंजॉय Enjoy करो करो। कि मुझे इतना अच्छा दिखना है, पैसे को खर्च करना है ना, तो खुद पे काम करो। मतलब अपने स्पोर्ट्स के लिए और ऑन योर एस्थेटिक्स। आई एम समवन हु वुड लाउड एंड आउट से कि अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे पे ये चीज़ ठीक नहीं है या ऐसा कोई दाग हो गया है, इतने अच्छे अच्छे एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं इंडिया में, बाहर से पेशेंट आ रहे हैं और हमारे इंडियंस को पता नहीं क्या डर लगता रहता है। डरने की बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि डेली तो आप अपने चेहरे के साथ बाहर जा रहे हो। मैंने 1 लाख का एक बैग ले लिया फॉर एग्जाम्पल, कितने दिन निकालूंगी उसको? मे भी 1 हफ्ते में एक बार शायद। लेकिन अगर मैंने अपने पे खर्चा किया, स्माइल पे, माई फेस और माई लुक्स, वो तो मैं डेली बाहर ले जा रही हूँ ना। सो व्हाई नॉट स्पेंड ऑन योर टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड बाकी तो फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आप हो, आप बताओ, लेट मी बी द होस्ट। उसके लिए एक अलग अनबाउंडिंग सेशन, बट या सो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द काइंड ऑफ चॉइसेस वी आर मेकिंग प्रोफेशनली। आपने बोला सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अब मैं एक आईटी का पर्सन हूँ या सब कुछ टेक्नोलॉजी पे पिवट हो गया है, अब तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है, तो अब कर ही क्या सकते हैं ना उस नहीं, हम case कर में? सकते हैं। आई टोटली डिसएग्री टू दिस। Okay. बेसिकली ना हमारे पास है वो टाइम, बस हमारे पास थोड़ी सी एंथुजियाज्म चाहिए। Yeah. आपके वो खराब जो Inspiration. हॉर्मोन्स है ना बॉडी में, जो ऊपर नीचे हो गए हैं, वो आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन आपको अंदर वो कैपेसिटी रखो कि मेरे को मेरे बच्चों के लिए एक हेल्दी लाइफ जीनी है। Yeah. मुझे उन्हें एग्जाम्पल देना है Yeah. कि वी डू नॉट सेटल फॉर लेस। हम कम के लिए नहीं सेटल करते, हम अपने लिए जीते हैं। ये एक सोच है, ये सोच जब अंदर आ जाएगी ना, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। But women health में, especially I'm talking about women more and more as we are going to Yes, be releasing this show very close to International Women's Day, just around the corner. Yay! But हम women को celebrate करते हैं, womenhood के बारे में बात करते हैं, women emotions, everything, their problems, inclusion के बारे में बात करते हैं, but women अपने ऊपर ही खुद कितना टाइम लगाना चाहती है, अपने लिए सोचना चाहती है। फैमिली सबसे आगे, फिर हस्बैंड और आगे, इन लॉज और आगे, बच्चे और आगे। कैसे रीसेटिंग करें इसको? आई थिंक इसके लिए ना हम लोगों को अगर एक नए इंडिया में घुसना है, यू कैन सी द वेस्टर्न वर्ल्ड, women look smashing hot, they look so good, they look so young, Even in 50s, 60s. yeah they really work on themselves. Yeah. तो थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। देखो, बच्चे भी चले जाएंगे बड़े होके अपने अपने काम पे, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। अगर आप अच्छे नहीं दिखोगे तो कल को पति भी बोल देगा, अरे आप तो बड़े अजीब लगती हो, वो लड़की को देखो, वो तो उस लड़की को देख ही रहा है। समझ रहे हो, वो लड़की को देख रहा है, उसको तो वो लड़की अच्छी लग रही है, वो थाईलैंड भी जा रहा है, राइट है ना, वो तो घूमने भी जा रहा है अपने वर्क ट्रिप्स पे, वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो आप क्या कर रहे हो अपने लिए? बच्चे ने तो बड़े हो जाना है, बड़े होके बोला है, क्या मम्मी आप अपने पे ध्यान नहीं देते, आप तो मोटे हो गए हो, आप तो अजीब दिखते हो, मम्मी ऐसी लगती है, उसकी मम्मी ऐसी लगती है, तो उसकी मम्मी वाला आप क्यों नहीं कर सकते? सोचो इस बारे में, क्योंकि अब नहीं सोचोगे ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा सोचने। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि हमें उनके लिए भी क्यों करना है? Why should we even think कि नहीं, बट अगर ये भी ड्राइविंग फोर्स अगर बन सकता है, बट अपने लिए करो कि मुझे अच्छा दिखना है, मेरी ये लाइफ है, मुझे एक बार मिली है। और देखो, इस शरीर को आपको चलाना है ना, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ टूल, yes, यू हैव टू गो देखो, ऑन अगर विद इट। आपने एक्चुअली में अपने 30s पे अपने ऊपर नहीं ध्यान दिया, लिखवा के ले लो, शुगर, थायराइड, बीपी, ये सारी बीमारियां पकड़ लेंगी, आर्थराइटिस बीमारियां पकड़ लेंगी, इसलिए भी करो। सुंदर तो दिखना ही चाहिए, मैं तो कहती हूँ इनसाइड आउट ब्यूटीफुल दिखो, अंदर से भी बाहर से भी। बट इम्पोर्टेंट है कि समझो कि बीमारियां पकड़ लेंगी, और इन बीमारियों के बाद ना कोई हेल्प नहीं करेगा, Yeah. ना ससुराल करेगा, Yeah. ना बच्चे करेंगे, वो बच्चे भी बाद में बोल देंगे आप कितना बीमार रहते हो, है ना। तो आई थिंक विमेन इन इंडिया नीड टू रियली स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, लुक एट द वेस्टर्न वर्ल्ड, कम ऑन। तो टोटल बर्नआउट जो है वो
बाहरी चीज़ों और बाहर की वैलिडेशन नहीं, बट अपने ऊपर भी, अपने ऊपर, हाँ, अपने कि ऊपर भी मुझे ये करो। बीमारियां नहीं चाहिए। उठ के बोलो सुबह टू द फैमिली कि भाई मुझे, आई टेल यू, मेरी सोसाइटी में एक जुम्बा ग्रुप है रन बाय माय फ्रेंड नयन शर्मा। शी रियली ड्राइव्स पीपल कि घर से निकलो, आओ जुम्बा करो, एक्सरसाइज करो, मेरे साथ पतले हो। और मैंने देखा उसकी इस जर्नी में उसने बहुत लोगों को पतला कर दिया। तो मैं कहती हूँ कि आपके पास हेल्प तो अवेलेबल है, और लोग भी available पतला हैं। इन द सेंस कि हम उसको एक उस कॉनोटेशन में नहीं लें कि इतने बाय इतने की फिगर है, इतना मेरा वेट है। हाँ। एक बहुत ही एजाइल बॉडी फ्रेम जिसके साथ आप अपने आप को चला रहे हो, सको, चल रहे हो, लाइट वेटेड फील feel कर करो, रहे हो। लाइट रहोगे तो उतना ही एक्साइटेड एंथुसियाज्म भी रहेगा, और मेंटली भी आप उतना बर्डन और सैप मैं तो नहीं आज feel ये करोगे। इम्पोर्टेंट बात ये भी बोल रही हूँ, आजकल बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। प्लीज़ मेंटली अगर किसी चीज़ के लिए परेशान हो, ओपन अप। इट्स टाइम टू ओपन अप टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली, टू दोज पीपल। वो लोग ट्रेंड है इसके क्योंकि लिए। प्रोफेशनल हेल्प और भी ज़्यादा अच्छा अवेलेबल है, आजकल मैं देख रही हूँ टीनेजर बच्चों को बहुत ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो फिर किस चीज़ का इतना पर्दा है ना? अगर उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है मेंटली, वो बच्चा परेशान है, उसको सुसाइड तक मत जाने दो, है ना? आई थिंक इट्स टाइम टू टेक हेल्प। हेल्प और ये लेनी छोटे चाहिए। छोटे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें हमारी Long self life worth, trauma हाँ, देंगे। और हमारी सेल्फ वर्थ पे डाउट आ जाता है आता है, कि बिल्कुल यार आता है। अब मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ, या उतना ग्लास स्किन नहीं है Of मेरा, course, या of मैं course. उतने बढ़िया बाल नहीं है मेरे, या वैसी Right, फिगर नहीं है right. मेरी। एंड ठीक है, किसी के लिए वो एक बहुत ही एक्सट्रीम थॉट हो सकता है विच कुड actually lead to something very drastic step, but किसी के लिए it can be complete depression and loss of confidence, इट इज right? इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब इंडिया बदल रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये पहले से ही होता था कि दे यूज टू टेक हेल्प। हेल्प आपको Externally. मिलेगी, हेल्प मांगनी मांगनी पड़ेगी। है ना? यू हैव टू टेल कि नहीं, मेरे को नहीं ठीक लग रहा है, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस। लाइक यू नो, डिप्रेशन को बीमारी के जैसे ट्रीट करना शुरू कर दो। इट इज़ अ बीमारी, आपको निकलना ही पड़ेगा उससे बाहर, हेल्प लेके। सिर्फ मेडिसिन की हेल्प नहीं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प, एंड यू नो। So, if you would like to invite someone who is an unstoppable human, or would just want to have a conversation with me, write to me at unboundwithmamta@gmail.com. That is unboundwithmamtaa@gmail.com. You can also follow my Instagram @Mamta Podcaster. That is MAMTAA Podcaster. हेल्प अवेलेबल है, हमें पूछना पड़ेगा, वील हैव टू शाउट आउट, बट व्हाट अबाउट थिंग्स दैट आर वेरी 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 इंटीमेट एंड वेरी पर्सनल, And people don't talk about it. people don't want to talk about it at all, like maybe they are taboo in some ways. हालांकि हमारे पॉपुलेशन नंबर वो नहीं बोलता है, but talking about sexual health, both for men and women, obviously women have indicators, you know, something like a perimenopausal, Yes, menopausal, true. depression, all of True. that. Is it actually natural to lose that drive after your 40s? Is that even true, firstly? No, it's false. It's completely false. There is no way out that you lose that drive. You only lose it because, you know, you're not taking care of yourself. Being obese, being not fit, not eating well, not on, you know, best supplements and everything. The hormones are not doing great. Lot of stress, you know, you're burned out and all of that. Yeah. You're not actually taking care of it. There are good supplements that can actually, you know, increase the drive. बट कोई जादू नहीं है किसी सप्लीमेंट में, मैं वो अभी भी बोल सकती हूँ। लाइफस्टाइल में जादू है। अगर सप्लीमेंट के साथ लाइफस्टाइल चेंज करते हो, यू नो, यू थिंक अबाउट इट मोर, एंड यू नो, you want to really take the help and everything. You want to talk about it to your gynecologist. Being a woman, men can talk to, you know, sexual doctors and urologists and all those people. सो मेन एंड वुमेन में क्या हो रहा है ना, वुमेन तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है, मेन पे ईगो आ गया है। उनको लग रहा है क्या बात कर रहे हैं इस बारे में, मतलब किसको बोले कि यार हमारे पास सेक्सुअल ड्राइव नहीं है, मुझे वो परफॉर्मेंस इशू है। हाँ, बट आई थिंक अगर आपको
इंजॉय करना है इसको तो आपको बात तो करनी पड़ेगी। आपको अपने डॉक्टर से, डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, मतलब आई थिंक वो किसी को नहीं बता रहा है कि आपने उनसे क्या बात की थी। Yeah. You should And talk they're to there them. to help you. They're there to. They're to just help you. Yes. Yeah. They're just there to help you. So there are amazing supplements for that. Second, there are lifestyle changes for that. That you lose a weight, you kind of accept it, go under a mental change for it. You try to give time to each other, है ना? स्ट्रेस को थोड़ा सा साइड, स्ट्रेस कैसे कम होता है जब आप फिटनेस को सामने लाते हो, जब अपने साथ मी टाइम स्पेंड करते हो, एंड you kind of do a lot of exercises. स्ट्रेस वहाँ से रिलीज होता है, हमारा Yeah. कॉर्टिसोल बढ़ता है बॉडी में, हाँ. और जैसे ही आप वर्कआउट करते हो वो कम हो जाता है। और ये क्या है ये क्यूट सा cortisol? I know you've been hearing it always. all this while you've been बहुत सुन talking रहे होंगे, about बहुत it. सुन रहे होंगे। हाँ. एक्चुअली ना कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस अलार्म्स होते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं ना, हमें लगता है ये ठीक नहीं चल रहा, वो सही नहीं हो रहा, ऐसा हो गया, इसने ऐसा बोल दिया, तो बॉडी में एक एक्टिवेशन हो जाती है कॉर्टिसोल। Okay. हम क्या करते हैं ना, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, वी स्टार्ट ईटिंग, Yeah. we start eating, or Stress we eating, get into yeah. depression, we Yeah. start sleeping. Yeah. We do not take that cortisol जो बॉडी में आया था sympathetically, कि अब हम इसको कैसे टैकल करें। Yeah. टैकल करने का दो तरीके हैं, अडेप्टोजेंस आते हैं लाइक अश्वगंधा एंड Okay. सतावरी, Okay. which are like really good. Second is basically doing exercise, wherein you vent out that kind of hormone and energies. So what you're trying to say, and if I'm hearing this correctly, is जो एक ये फिजिकल लेट आउट है, जो एक्ट है, एक्सरसाइज या फिटनेस जो भी आप कर रहे हैं, फिजिकली तो वो जो कर रहा है वो कर ही रहा है अपने लेवल पे, मस्कुलर लेवल पे, एट इमोशनल and at mental level also it is helping you. It is going to vent out that so much of negative energy, and you will feel good about yourself. I think gut भी better हो जाएगी when you exercise. आप अच्छा खा रहे हो अगर, प्रोटीन, proper balanced diet, and you're eating well, you're happy with your eating. अब जैसे मैंने अगर जवार का रोल खाया, I'm happy with it. My hormones will secrete and I'll be very very accepting it all. और अगर मैं सोच रही हूँ यार ये क्या खा रहे हैं, तो obviously the hormones will change. It's all a mind game also. So mind and gut are very much interlinked. You need to really make a nice sandwich out of it and enjoy it. Yeah, true. That's true. Coming back to the sexual health Yes, conversation. yes. Now women of course can seek with counselors and experts like you course. yourself. How about men, and who are not willing to really move out of their comfort That's what zone? I'm saying. They are happy to accept that we are going nowhere with this, and this is the end of my sexual life. That's what they accept. They just say it. अब तो 20 साल हो गए हैं शादी को, अब क्या करना है हमें, अब क्या मन है, यही बदलना है, इस सोच को बदलेंगे तभी तो मतलब इंडिया में एक चेंज आएगा। बट ये ओवरऑल वेलबींग के लिए सेक्सुअली बहुत ज़रूरी है, बहुत। Okay. सेक्सुअली एक्टिव रहने से हमारे बहुत अच्छे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन ब्रेन में जाता है एंड क्रिएट्स अ वेरी गुड इफेक्ट इन योर ब्रेन, मेंटल हेल्थ। देखो सब कुछ आप किस लिए कर रहे हो, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा जॉब, अच्छा पैसा, यहाँ के लिए मेंटल, you want to feel good, you want to feel happy. So sexual is a very big part of that. अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं और हम एक्चुअली में सेक्सुअली ड्राइव नहीं है, वी आर नॉट हैप्पी विद आवर पार्टनर, तो सब कुछ फेल हो जाएगा। तो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ कि शायद एक बंदे को है, एक को नहीं है, तो आपस में बात करनी पड़ेगी। दे नीड टू सीक हेल्प सो दैट रिलेशनशिप इश्यूज नहीं होंगे। आप देखो बिकॉज ऑफ सेक्सुअल हेल्थ रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होते हैं। सारे डिवोर्स 35 के बाद शुरू हो जाते हैं, या तो इनिशियली होंगे या वो 40 के बाद शुरू हो जाएंगे। क्यों होते हैं वो 40 के बाद शुरू? बिकॉज ऑब्वियसली they're not happy sexually. Maybe they're earning well, but sexually they're not aligned, and they're not seeking help, they're not discussing it. So ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। And you're saying that men are also equally at the suffering end बिल्कुल, of it. of course, they're not just saying it. स्ट्रेस तो उनको भी है ना, ट्रैवल तो वो भी कर रहे हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है। बहुत सारे IVF ट्रीटमेंट में मेन को IVF का हम ट्रीटमेंट देते हैं, देना ही पड़ता है, बिकॉज वी नीड टू इम्प्रूव देयर स्पर्म काउंट्स एंड एवरीथिंग। सो देयर आर स्टडीज टू दैट। कोएंजाइम Q10 जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेन को प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग, बिकॉज ऑब्वियसली इट इम्प्रूव्स द स्पर्म काउंट एंड इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी। सो बेसिकली मेन are also very much responsible.
they can actually get benefited if they accept it, they seek the help, Yeah. counseling and product, both. अच्छे अच्छे मार्केट में बहुत अच्छे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं. पीचेक्स में भी वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट विच इज नेम आई विल नॉट disclose right now because right now. yes, everything will be disclosed soon. Yeah. But it's going to make a very big change in this thing. That is why the brand is starting. It's for people. Yeah. But they need to come forward. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ये तो बहुत सारा कॉन्वर्सेशन हो गया है, एकेडमिक पार्ट, एजुकेशन पार्ट, लोगों के बारे में. अब हम ट्रू अनबाउंडिंग पे आएंगे. आई वुड हैव अ quick volley of questions for you, which I'm Thank going to you. throw totally unbounded, and you have to come back with maybe a sentence or one word answer. So are you ready for this rapid reflex round? Yes, nervous and ready. Never have you ever. Just complete this sentence for me. Never have you ever. Like, have you ever? No. Okay, that's me, yeah. Never have you ever me. I have never been in jail. Okay. That's something to say. Okay, that's something to say. Your wildest fantasy. Wow, wildest fantasy. Oh, I would want to go to striptease. Oh. Would love that. But it's unbound with Mamta. It is unbound. Your favorite comfort food. Comfort food is always been dal chawal. Always dal And then to हाथ से खाना चाहिए. Oh. Sensation activate होते हैं. Oh. That's what I'm saying. जितना खाने को enjoy करके खाओगे, simple खाना भी, बहुत मजा आएगा. Okay. One thing which is a must do for you, let's say first thing in the morning when you wake up, open your eyes. The moment I open my eyes, I want to see the light. Light. I want to really take out my curtains and look at the sky and feel that, okay, we are happy, we are there in the day. God is so kind to us. That is something I love. And one thing which is kind of a bedtime ritual, a must do. Bedtime ritual for me has been just my detox tea. So we have a very special detox tea which is no caffeine. So yeah, I would drink that tea and such a nice sleep. Yeah. Because I'm someone who needs good sleep. Good sleep, yeah. Your, I would say, guilt indulgence, if at all there has been any. It's been always dark chocolates. Okay, dark chocolates. And how do you keep your sugar in control with that? So dark chocolates comes in like very much non-sugary also, Okay, you know, okay. flavors. I really search for them. I really go to places where, you know, there's a very low sugar in it. And that's what I said, moderation. Moderation. And any one favorite moment or, you know, point in time in a day or in life where you go completely unbound. So maybe you're having not a good one and then you get into that situation or that maybe your own personal space or any moment that you've created for yourself and you come out of it totally unbounded. So basically, I believe in Guruji. Okay. I'm a follower of it. Okay. So whenever I get into a very bad situation or anything, I just close my eyes and connect with him. I would just request him, you know, I need some peace and let me connect. Oh, Yeah. That's so you something I are do. a spiritualist too. Yeah, I am. Okay, okay. And That's one, what I said. yeah. Stress eating mat karo. Yeah. Connect to, you know, maybe friends, people and your Yeah. gurus, whatever. you Yeah, like. yeah. Whosoever bring that light and wisdom and whatever, Peace to happiness you. or joy or peace to you. Excellent. Are you a reader? Do you like to read? Lovely. I love to read. Yesterday I was reading about leaky gut syndrome. Everyone has to read about it because in rich families, I'm finding people with iron deficiency, vitamin B12 deficiency. And why is that so? Yeah. So your gut is actually not able to take in the food you're, you know, eating. It's not accepting it. Something is happening. I mean, you have to visit your gastroenterologist, check with it. There's something more happening with your gut. Your gut is inflamed. You need to start the probiotic now. Now is the time you start the probiotic. Heal your gut, zinc लो, probiotic लो, vitamin C लो, gut को heal करो. मतलब मैं आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर सकती हूँ. आपने कहा मेरी बॉडी में आयरन कम है मैम, आयरन दे देंगे, बट रूट कॉज नहीं ट्रीट हुआ. रूट कॉज जब तक ट्रीट नहीं होगा ना, तो इतने लोग जो कुछ भी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ. जैसे मैंने एक पेशेंट को सप्लीमेंट दिए विटामिन B12 के, अगेन इट वॉज लो, डी भी लो. क्यों? क्योंकि गट लीक सिंड्रोम चल रहा है. Okay. आप देख रहे हो आजकल बहुत लेटर एजेस में भी लोगों को एलर्जीज हो रहे हैं. कुछ भी खाने से एलर्जी हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, सब गट से आ रहा है.
Oh, देर इज़ अ नीड नाउ, क्योंकि इतना ज़्यादा प्लास्टिक है, बहुत Yeah. प्लास्टिक है इन दिस वर्ल्ड. इट्स इज एक्चुअली कॉजिंग प्रॉब्लम्स टू अस. माइक्रोवेव, प्लास्टिक, अडल्ट्रेटेड फूड. तो अब प्रोबायोटिक मस्ट हो गया. जैसे यूएस में ना यू टेक प्रोबायोटिक एवरी डे एंड दे स्टे गुड एंड नाइस. यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ जाएगी अब. Oh. Sexual health is, just complete this. Sexual health is mental health. If you are into a good sexual life, you're mentally very happy. Trust me on that. It's very important. Those who are not having a good mental health, feeling very depressed, not very Check on good. you. One thing you'd like to acknowledge, say to your family, your life partner, your child. Thank you, my family, my child, my husband. Everyone has been very supportive of all the people, my friends, people I meet every day. They really make my day. They give me every day something to learn, and that's why here I am with so many hats and so many things to bring upon. It's by the people. Any sign off line that you have, or some catch line that you always repeat, any phrase? So I repeat a phrase. I have just repeated here. Beauty inside out. I believe in it. Have a nice soul. You know, help people. Expect less. जिस सेंचुरी में हम लोग हैं, एक्सपेक्टेशन कम रखो, ड्रामा कम रखो, काम करो, रीड करो, and be happy and nice. Eat well. So beauty inside out. Beauty inside. Spend on yourself. Yeah. Life is, just complete this sentence. Life is very beautiful if you actually believe in it. The mantra of life. Mantra of life was not about, irritating people or creating drama. It was all about living it. Happiness is. For me, happiness is fitness. Yeah. And happiness is fitness for me. If I'm like having that fitness and every day I'm getting that time, I'm really happy. I'm not happy going to a club every day, but I'm happy going to my gym every day. Oh wow, from clubbing to gymming. 20s to 30s. 20s to 30s. Excellent, excellent. And any one message that you would specifically want to give to women of today, entrepreneurs of today, women entrepreneurs of today, mothers of today, parents of today, specifically to that community? There is a huge message for women. I am also a woman, entrepreneur, mother, wife, daughter. Please look out for yourself. Everyone will be on their way. They'll be aligned. सब आपको हेल्प करने आ जाएंगे. खुद को हेल्प करनी पड़ेगी आपको. अपने आप के लिए हेल्प सीख करो. अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी को किसी मैन से कम मत समझो. लड़कों को जब एक्चुअली कुछ अचीव करना होता है वो सब कुछ छोड़ देते हैं और वो अचीव करते हैं. तो आप अपनी जर्नी में बिल्कुल पीछे मत रहो. अचीव इट गर्ल्स. यू गॉट इट. You got it. All right. I think that's really, really an excellent way to wrap up the show. Thank you. You've thoroughly come unbound on the show. Thank you so much for sharing your life, your journey, purpose, everything with us, and totally unbounding. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you, Mamta. It was a brilliant experience to be here. You really make people so comfortable that they come unbound to you. And that's a gift. That's a gift. Thank you. And second, I think kudos to your show. You get more and more and more fame on it. Thank you so much. Thank you. Let's keep unbounding together. Thank you so much for tuning into this episode. And for all the episodes, you can come back to Unbound with Mamta, now available on 20 plus audio streaming platforms: Spotify, Amazon, Gaana, iTunes, Google Podcasts, or wherever else you get your audio.